Welcome. In A part of lecture 5th, in B and A part of lecture 4, we studied the definition of Hermitian matrix, Q-Hermitian matrix, and some result, two theorems based on the diagonal element of Hermitian and skew-Hermitian matrices. So we studied these four results there. In today's lecture, we will study some more property of Hermitian and skew-Hermitian matrix as we studied in fourth C part. The C part of lecture 4th, we studied symmetric and skew-symmetric matrices and their properties. Similarly, in today's lecture, we will study Hermitian matrix property. The average square matrix is written as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. Very important question, and one question that represent the given square matrix as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix and two theorems. So let us first take the result. Show that average square matrix is uniquely expressible as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. एक तो आपको देखो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना है, यूनिकली एक्सप्रेस, मतलब आपको इसमें यूनिकनेस प्रूव करनी है वन एंड ओनली वन वे, ठीक है। एंड सेकेंडली आपको यहाँ एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करके चलनी है। तो वी विल स्टार्ट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स and we will prove that this is equal to sum of two matrices. One of them is Hermitian and the second is skew Hermitian, and then I will prove uniqueness of this result. Okay, that's why this question is most important. So first I am supposing B be a square matrix. तो as in previous lecture यानी हमने किया था C part, वह हमने किया था स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. तो हेयर B is my given matrix, so I can write B is equal to B by 2 plus B by 2. देखो ना, हाफ हाफ तो B ही होगा, ठीक है. Also you can put here conjugate, complex conjugate ट्रांसपोज एंड सेम मैट्रिक्स आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है. तो यानी आपका एक्सप्रेशन क्या बना, दिस इज 1/2 टाइम ऑफ B प्लस B थीटा एंड दिस इज 1/2 ऑफ B माइनस B थीटा. एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, यानी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था B थीटा क्या है, दिस इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है. तो अब आपको प्रूव करना है कि लेट अस टेक दिस P एज हाफ ऑफ B प्लस B थीटा एंड दिस इज Q. नाउ द टू प्रूव जो हमें रह गया प्रूव करना है वो क्या है. नाउ आई वांट टू प्रूव दैट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. P इज माई सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आप यहाँ कह भी सकते हैं वेयर व्हाट इज माई P मैट्रिक्स हियर, दिस इज माई गिवन मैट्रिक्स where P is half of given matrix, its complex conjugate transpose, and Q matrix is half of B minus of B theta and this one. To prove, अब हमें प्रूव करना है P is symmetric matrix. इट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना चाहिए, आई विल प्रूव हियर, सॉरी, P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स. P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड फॉर दिस I will take complex conjugate of this matrix and I will prove that this is equal to same matrix, ठीक है. And second I want to prove here Q is skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix. एक्चुअली डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए मैंने आज नहीं करवाई. तो फॉर दिस यू शुड वॉच A एंड B पार्ट ऑफ लेक्चर 4th, ठीक है ना. इसी के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन गिवन है,
तो आप वहाँ देख सकते हैं कि कौन से लेक्चर में मैंने कौन सा टॉपिक कवर अप किया हुआ है, एंड आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो क्यू क्या है? दैट इज़ क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्यू हर्मिशियन के लिए क्या प्रूव करना चाहिए? क्यू का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, आफ्टर प्रूविंग दिस वन हमें प्रूव करना है यूनिकनेस, यानी कि आप क्या करेंगे एज द प्रीवियस लेक्चर, आई विल टेक दिस इज आर प्लस एस, तो अनदर वे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, and for uniqueness I will prove that this is equal R is equal to P and S is equal to Q. ठीक है, now to prove that P is Hermitian I will start with P theta. P theta, theta means complex conjugate transpose. ठीक है, and P theta, what is P matrix? P is my half of B plus this one, I am writing B matrix plus B complex conjugate transpose and this is theta. ठीक है, तो 1/2 is outside, and in lecture 1 we studied the this notation properties, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है ना, तो इसमें अगर B और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तो थीटा भी उतनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो you will take this transpose conjugate operator on this matrix, and here is plus sign, here already one transpose conjugate है, you are taking one more transpose conjugate of this matrix, and this is 1/2 as it is, this remains the same, and transpose conjugate of transpose conjugate matrices matrix, this is again equal to the given matrix, that is B. So I use this result here, this is B, and matrix addition कैसा होता है? commutative, so I am using that property also here, matrix addition is commutative, that means A plus B करो या B plus A करो, आंसर सेम है, तो you can write this is equal to, I am writing this matrix first and this matrix second. So what is this? This is the same as your P. So I got here P transpose conjugate is equal to P matrix. So this implies that P is कैसी मैट्रिक्स है? P is Hermitian. ठीक है, on the same line I will prove Q is skew Hermitian. Now to prove Q is skew Hermitian, तो Q transpose conjugate is equal to, what is my Q matrix? Q is this one. ठीक है, तो I am putting here 1/2 B minus of B theta. Transpose conjugate का symbol है theta, and this is Q matrix. I am taking this operator here, theta. Transpose conjugate. So as previous study, so it will make the conjugate transpose या transpose conjugate of B matrix. So this is theta and B theta का theta, this is B again. Now from this I can take minus outside, so this is 1/2 B minus of B theta, and this matrix is again Q and minus sign is outside. So here I got Q theta is equal to minus Q. This implies Q is a skew Hermitian matrix. Skew Hermitian matrix, and I consider here in equation number, you can write this is one expression, I am splitting B as the sum of two matrices, one is P and second is Q. It shows that this B matrix can be expressed as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrices. तो ये तो रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट है इसमें यूनिकनेस। फॉर द यूनिकनेस let us suppose the B can be expressed as the sum of another Hermitian and skew Hermitian matrix. So I write B is equal to
आर प्लस एस, ठीक है। वेयर आई एम सपोजिंग हियर कि आर इज योर हर्मिशियन, अनदर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, अदर देन अनदर वे है आपका बी को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि हमें वन एंड ओनली वन वे करना है ना। तो वी आर सपोजिंग कि आई कैन राइट दिस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अनदर वे मान लिया मैंने, कंसीडर कर लिया कि अनदर है, ठीक है। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि जो आर है वो कुछ नहीं है, जो आपने पी मानना है वही है, एंड योर एस इज नथिंग बट दिस इज माई फर्स्ट नोटेशन जो हमने की थी, दैट इज क्यू मैट्रिक्स है। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि बी इज सम ऑफ अनदर टू मैट्रिसेस विच आर, फर्स्ट इज हर्मिशियन, तो इट मीन्स आर थीटा मैंने क्या सपोज किया है यहाँ पर, दैट इज आर, एंड एस कैसे लिए, स्क्यू हर्मिशियन, सो एस थीटा क्या है, माइनस ऑफ एस। तो आई एम सपोजिंग हियर दिस इज गिवन टू मी, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस हो गए। रिजल्ट क्या प्रूव करना है, यूनिकनेस। इट मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि आर इज इक्वल टू पी है और एस इज इक्वल टू क्यू है। अब आपका टारगेट ये है, यहाँ पहुँचना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए बी मैट्रिक्स ये वाले, ठीक है, तो इसका आप क्या कीजिए, यू विल टेक द conjugate transpose conjugate of, write this equation 2, तो from 2 you are taking b theta both side. अब this is the sum of two matrices है, तो theta will split on this, अगर r प्लस एस को ऐड करते हो तो थीटा की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज कंजुगेट स्प्लिट हो जाएगा एवरी मैट्रिक्स पे, ठीक है। एंड आई सपोज दैट आर थीटा किसके इक्वल था, आर के इक्वल है, तो आई एम राइटिंग हियर आर, एंड एस थीटा किसके बराबर है, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन है, सो दिस इज आर माइनस एस, ठीक है। राइट दिस इक्वेशन 3, एंड 1 ने आपको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम 1 हमने प्रीवियस पेज पे लिखा था, दैट इज माई 1 में आपने लिखा हुआ है कि दिस इज पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको हम यूज़ नहीं करेंगे अभी हम आंसर निकालना चाहते हैं आर का इन टर्म ऑफ दिस, तो फ्रॉम 2 आई गॉट दिस वन और टेकिंग दिस, एंड इन 2 दिस इक्वेशन बी किसके बराबर है, आर प्लस एस के इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज माई इक्वेशन 2, तो यूजिंग दिस एंड दिस कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यस, एडिंग कर दो, एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी थीटा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी, तो सेकेंड पहले ना, तो यू कैन राइट दिस इज बी प्लस बी ऑफ थीटा, राइट में राइट ऐड होगा तो एस कैंसिल आउट, तो दिस गिव्स 2r, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ r विल बी हाफ ऑफ b प्लस एंड b थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट आवर p मैट्रिक्स। तो यहाँ प्रूव हो गया ना कि आपका r किसके इक्वल है, दैट इज माई p, ठीक है। सेकेंड टारगेट है आपका s इज इक्वल टू क्यू, अगेन आई हैव 2 and 3 इक्वेशन, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, सो यू विल राइट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट आपकी है लेफ्ट हैंड साइड b, यू आर सब्ट्रैक्टिंग 3, तो माइनस b थीटा b, ये आपका r प्लस s है, माइनस के r प्लस s, तो दिस गिव्स 2 ऑफ s, ठीक है। तो 2s को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो योर आंसर इज दिस इज 1 s इज इक्वल टू 1/2 ऑफ b माइनस ऑफ b थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट q मैट्रिक्स। सो फ्रॉम हियर यू प्रूव दैट कि इफ you write the another way, so that your r is nothing but your p matrix and your q is nothing but your s is nothing but your q matrix. So your r and s are the same matrices, so a is equal to या b is equal to what is this, this is b plus b theta by 2 plus b minus of b theta by 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि स्प्लिट दिस एज अ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यू विल फर्स्ट टेक द
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, देन यू ऐड द बी एंड बी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यू विल गेट दिस इज योर हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना, एंड दिस विल बी योर स्क्यू हर्मिशियन. So let us take the example based on this result. Express the following matrix as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrices. The given matrix is x is equal to 7 minus 4 iota, 2, 3 plus 5 iota, 3 iota, 6 iota, and these are the entries. ठीक है, तो as we studied previously, I can split this x in this form. This is my P matrix and this will be my Q matrix, where this is Hermitian and this is skew Hermitians. No need to prove here कि this is Hermitian. Just आपका आंसर जो आएगा आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ ए थीटा एक्स थीटा कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट एक्स थीटा, तो फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द एक्स बार. एक्स बार मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ माई एक्स मैट्रिक्स. ठीक है ना, तो व्हाट इज दिस, this is 7 minus 4 iota. How to take the conjugate? Just you replace iota by minus iota everywhere, है ना, तो you will get here 7 minus of ये प्लस बन जाएगा 4 iota, it is 2 remains real part है, and this is 3 minus of 5 iota. You will take the conjugate of complex conjugate of every element. So this is 3 iota, this is minus 6 iota, it will becomes 1 plus 4 iota, this 3 iota, it will gives 2 plus iota, and this is 3. ठीक है, now take the transpose of this. So what is your x theta? This is x conjugate transpose. So you will write the first row as the first column. So 7 plus, it is 7 plus 4 iota, first row 2, and it is 3 minus of 5 iota. I wrote here the first row as the first column. Now this is my second row. I will write on this column. So it is minus 3 iota, minus 6 iota, 1 plus 4 iota. And the third column on the, third row on the third column. So this is 3 iota, this line, and this gives 2 plus iota, and it is 3. ठीक है, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, दिस इज एक्स थीटा एंड व्हाट इज एक्स मैट्रिक्स, दिस इज गिवन मैट्रिक्स. तो इन दोनों को आपने एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो करिए इनको ऐड. सो the Hermitian matrix for the given question is 1 by 2 of x plus x theta. So I wrote here sum of these two matrices. So one element of x matrix, that is 7 minus 4 iota, and one element of x theta is 7 minus 4 iota. So I wrote here the corresponding element of both matrices. x के मैंने एलिमेंट लिखे हैं ब्लू से एंड x थीटा के लिखे हैं ग्रीन से. ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, तो व्हेन यू ऐड दिस 4 iota कैंसिल, तो आई गॉट एट 1 पोजीशन इज 14. दिस इज एज इट इज 3 plus 8 iota, इट गिव्स 2 plus 3 iota. 6 minus 6 iota क्या हो जाएगा, 0, एंड दिस इज 3 minus 3 iota, this gives 3 minus 8 iota, it gives 2 plus 1 3 and plus 3 iota, and this is 6. 1 by 2 is outside, I am taking this inside, so every element is multiplied by 1 by 2. So here I got 7, this gives by 2 करेंगे ना आप इसमें, तो 1 minus 3 by 2 iota, here 3 by 2 plus 4 iota, 2 by 2 is 1, and this is 3 by 2 iota, it gives 1 by 2 से करोगे तो 0 gives 0, 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 by 2 minus 3 by 2 also here, and this gives 3 by 2 minus 4 iota, and 3 plus 3 by
2 iota and this is 3. Now this is your required हर्मिशियन मैट्रिक्स. अब हर्मिशियन आप चेक भी कर सकते हो. देखो डायगोनल एलिमेंट आपके रियल होंगे. ये प्रूव किया था हमने फोर्थ के ए पार्ट में. तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल. ठीक है ना. एंड 1-2 पोजीशन और 2-1 पोजीशन ये आपको कॉन्जुगेट मिलेंगे. दिस कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन. तो ये हर्मिशियन है आपकी. वैसे आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. यहाँ जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है. सिमिलरली यू विल फाइंड skew Hermitian matrix, and I know what is a skew Hermitian matrix for the given matrix. That is Q and that is nothing but x minus of x theta. and corresponding element उठाइए, उनको subtract कर दीजिए, तो कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर बनेगा. योर आंसर विल बी, तो आई गॉट दिस x माइनस ऑफ x थीटा. करना कैसे, जस्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर सिंबल माइनस हो जाएगा. ठीक है ना. तो -7 -4 आएगा, तो -8 आएगा. 2 से डिवाइड होगा तो -4. ठीक है. अब आप इसे ना डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं. इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एलिमेंट इसके बराबर होगा. सिमिलरली आपने किया था ना AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI कॉन्जुगेट. तो दिस इज़ द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो आप बिना कैलकुलेट किए भी चेक कर सकते हैं. अदरवाइज इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी होगी ही skew Hermitian. So you have proved that x is equal to p plus of q, where p is Hermitian and q is skew Hermitian. तो स्प्लिट कर दिया आपने एक गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स हो. दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि 5th के बी पार्ट में करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.